Yes, my dear students, welcome back to logical reasoning. Today we shall be doing a very interesting, a very small chapter. बहुत simple है. The name of the chapter is logical sequence test. जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारे mapping sheet में उसको mention करेंगे. Come on, go to your mapping sheet, first page, index of your notebook, and mention there logical sequence test. Yes, module ka page number 249 and write the respective page number of your notebooks as well. Come on. Logical sequence test, page number 249. Come on. Everyone ready? Okay, let's start. Logical sequence test. Okay? जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि logical reasoning is a subject of common sense. Gopal, kindly mute yourself, please. Yes, sir. Thank you. Yes, okay. As I've always told you, and I'm still continuing to tell you that logical reasoning is a subject. Okay, जिसमें आप जितना भी theory पढ़ोगे उतना आपको complicated feel होगा. Okay, keep it simple. Do the problems, solve the sample questions, and then you will be able to understand that particular chapter very well. Same logic we are going to apply in the two chapters that we are going to study today. Okay, the first chapter that we'll be studying will be logical sequence test. Logical sequence test. Okay, now my dear students, when I say logical sequence test, नाम में छुपा है, नाम में छुपा है, क्या बताता है नाम हमें? Logical sequence. What is meant by sequence? What is meant by sequence? सीक्वेंस मतलब लाइन वाइज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी छोटे बच्चे का एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स? पहले क्या होता है? पहले प्ले ग्रुप होता है, देन देयर इज नर्सरी, करेक्ट, देन देयर इज केजी, किंडरगार्टन, राइट? फिर क्या होता है? फिर उसके बाद फर्स्ट टू 10th, फिर सेकेंडरी स्कूल, राइट? फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा तो सीएसईईटी या तो फिर ग्रेजुएशन, राइट? सो सीक्वेंस मींस व्हाट? ऑर्डर. Sequence means what? Order in which things will occur. Okay? And it should be logical. It should be logical. What is meant by logical? Something that is clear, understandable, and simple. Okay? Correct? That is nothing but logic. So logical sequence test. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? चीजों को उनके लॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे. ओके, अपने पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, कोई सिचुएशंस हो सकते हैं. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए हैं और उनको हमें अरेंज करना है उनके सीक्वेंस के हिसाब से, राइट? सो logical sequence test in this, we have to arrange typical situations, particular things in a logical order. Are you all with me? Shall we go ahead? Yes. Next. Okay. Yes. In this type of question, some words are given. You have to arrange them in a meaningful order. The order may be according to age, size, need, etc. Okay? Yes. So, जैसे ही हमने देखा है, make it simpler. Okay? Gopal, last time I should tell you to mute yourself, please. Let's go ahead further. Yes, एग्जैक्टली. अब अपने सामने देखो क्या सिचुएशंस है? डेथ, मैरिज, एजुकेशन, बर्थ, फ्यूनरल. व्हाट इज मेंट बाय फ्यूनरल? व्हाट इज मेंट बाय फ्यूनरल? जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद का जो होता है ना, पीपल एक जगह पे आते हैं, दे सेंड विशेस, राइट? बराबर है? To the one who has passed away. That entire procedure is known as funeral. Okay? Yes. तो अब मुझे बताओ इसमें लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बर्थ. पहले बर्थ होगा. सबसे पहले होगा बर्थ. ओके, उसके बाद क्या होगा? कम ऑन. बर्थ के बाद एजुकेशन. आफ्टर बर्थ education. We are not in the era of child marriage. Come on.
Marriage. नेक्स्ट, सुखी हो, एंजॉय कर लो। Marriage. हाँ, उसके बाद क्या आता है? मैरिज। Marriage. शादी होते ही गए ऊपर, बराबर। डेथ, Yes. राइट, एंड डेथ के And बाद last funeral. Funeral. इज नथिंग बट फ्यूनरल। Hmm. So what is our logical sequence? 4, 3, 2, 1, 5. Check. कौन सा आंसर? Alternative D. Alternative D is the correct answer. तो बोलो, चैप्टर इजी है कि सिंपल है? Easy. इजी है, ओके। Yes. बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब हम लोग आगे चलेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल इज बीइंग गिवन ऑन पेज नंबर 250. ओके, यस, ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर। वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन, ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर। अब ये इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? शुरुआत का पॉइंट क्या होगा? कम ऑन। Cow. Grass. Cow. पहले काऊ होना चाहिए। अगर काऊ का- होगी then Yes, ma'am. cow will feed on the grass, करेक्ट? तो पहले तो काऊ होना चाहिए। Hmm. Okay. उसके बाद Grass. काऊ खाना खाएगी, राइट? Yes. काऊ का खाना ग्रास। First. यस, देन Curd. what will happen? Milk. Then cow will give the milk. उस मिल्क को हम लोग क्या करेंगे? Curd. उस मिल्क को हम लोग क्या करेंगे? पहले कर्ड करेंगे and then Convert. curd से Convert. right, everyone? Yes. Right? Okay, so tell me which is the sequence of the alternative? 4, 1. C. Correct answer. C. Understanding? Everyone? Okay, Yes. let's go to the sample questions. Okay, let's go to the sample questions. Page number 250. Everybody with me. Question number 1. I hope आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, पहले ग्रास बोला, फिर काउ, करेक्ट? तो आप लोगों को क्या करना है? नोटबुक में जॉट डाउन करो। जो लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, एग्जाम्पल 2, पेज 250 लिखो उधर। फर्स्ट देयर शुड बी काउ, देन दैट काउ विल ईट ग्रास, ताकि आप लोग जब रिवीजन करो तो आप लोगों को याद रहेगा कि मैम ने आपको बोला था। मेरे वीडियोस तो हमेशा है आपके पास, बट स्टिल व्हाई टेक चांसेस, करेक्ट? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज 250, फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन। Key, door, lock, room, switch on. Come on. Tell me, what will be the first? Tell me. I think Option D, ma'am. 1 minute, my dear students. If you don't listen to my instructions, I'm going to throw you out of the class. Yes. I'm sorry. Okay. Come on, tell me. पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? First there should be key, right? Yes or no? Yes, ma'am. or no? Yes. फिर क्या होना चाहिए? Lock. Lock. होना चाहिए। फिर Door. Door. फिर डोर होना चाहिए, ओके। फिर Room. Room. रूम होना चाहिए, और फिर Switch on. स्विच ऑन। अब इसका सीक्वेंस हम लोग, आप लोगों ने मुझे बोल तो दिया, पर इसके पीछे का लॉजिक कौन बताएगा मुझे? कम ऑन। अगर हम लोग सीक्वेंस देखें, ओके, तो एंड पॉइंट क्या है जहां तक हमें ध्यान आता है? स्विच ऑन, मतलब हमें रूम में जाके लाइट का बटन या फैन का बटन स्विच ऑन करना है, करेक्ट? सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट, दिस इज वेयर आई हैव टू रीच। तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं मेरे जेब से चाबी निकालूंगी, सो आई रिमूव द कीज। फिर वो क्या करूंगी? लॉक ओपन कर दूंगी, दैट इज नंबर 3। उसके बाद मैं क्या करूंगी? डोर ओपन करूंगी, फिर मैं रूम में जाऊंगी एंड देन स्विच ऑन करूंगी, करेक्ट? Is it 1, 3, 2, 4, 5? Is it 1, 3, 2, 4, 5? My dear students. Yes, ma'am. Okay, लॉजिक समझो। एंड पॉइंट कहां पे है? मुझे स्विच ऑन करना है।
रूम में जाके और रूम बंद है तो पहले मैं क्या करूंगी, चाबी लूंगी, चाबी से लॉक खोलूंगी, लॉक से दरवाजा खोलूंगी, दरवाजा खोलने के बाद मैं रूम में जाऊंगी एंड देन आई विल बी पुटिंग ऑन स्विचिंग ऑन द buttons whatever is required. Okay, yes, let's go ahead to the next question. Word, paragraph, sentence, letters, phrase. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. Come on. सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, Words. words. Letter. Letters. That is letters, correct? हाँ, तो जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं. Scope of mistake is way higher in this chapter. Okay. Yes, letter से क्या बनता है, Word. letter से बनता है word. Word. word से क्या बनता है, Word sentence. Sentence. What is meant by phrase? What is meant by phrase? First tell me. Phrase और sentence के बीच में फर्क क्या है, कौन बताएगा? Phrase is a collection, arrangement of words which does not have verb. Actually ऐसा देखा जाए तो वो सेंटेंस की जैसे ही होता है, बट सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कभी कंप्लीट होता है क्या, नहीं होता, राइट? तो फ्रेज इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब. अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, बराबर है ना? तो पहले क्या बनेगा, लेटर्स, एबीसीडी से हम लोग वर्ड बनाएंगे, फिर वर्ड्स को एक साथ करके फ्रेज बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग वर्ड डालेंगे, वर्ब डालेंगे, वर्ब डालते ही क्या होगा, सेंटेंस फॉर्म होगा, और ऐसे कई सेंटेंसेस से हम लोग बनाएंगे पैराग्राफ. करेक्ट, करेक्ट. तो सबसे पहले आएगा लेटर्स, लेटर्स से बनेगा वर्ड, इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को एक साथ करके हम लोग बनाएंगे फ्रेज, फिर फ्रेज में हम लोग वर्ब डाल देंगे तो वो बनेगा सेंटेंस, और ऐसे कई सेंटेंसेस को एक साथ करके बनेगा पैराग्राफ. यस और नो, यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, so that goes to your option. Option number D. 3. D. is Sorry. the correct answer. B. Okay, shall we go ahead? Yes, ma'am. Okay, आप लोग इतना आराम से आंसर कर रहे हो, क्या सेकंड चैप्टर करना है कि नहीं आज, कि एक ही करना है? ओके, पुलिस पनिशमेंट, बिल्कुल हड़बड़ी में मुझे जवाब नहीं चाहिए. टेक योर ओन टाइम, बी लॉजिकल, हैव कॉमन सेंस. ओके, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट. कम ऑन, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हमारा लास्ट एंड पॉइंट क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है? चलो बताओ. Judgment. कहाँ पे Judgment. पहुंचना है हमें? Judgment. Okay, judgment. Anybody else with any other answer? Punishment. Very good, very good. हमें जजमेंट में नहीं पहुंचना, जजमेंट से मिलेगा आइदर बाइज्जत बली, सॉरी, बाइज्जत रिहा हो जाएगा या बाइज्जत बली चढ़ जाएगा. दैट इज नथिंग बट पनिशमेंट, राइट? सो आइदर यू गेट पनिशमेंट or you do not get punishment, right? So punishment is a result of judgment. So end point क्या है? Punishment. Punishment. End point क्या है? Punishment. बराबर है? Anybody having any confusion? No, ma'am. अब पनिशमेंट, जजमेंट कब आता है? स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है ये सब? Arresting. नो, Sorry. Crime. क्राइम कंडक्ट होगा. क्राइम कंडक्ट होने के बाद वहां पे दौड़ते दौड़ते पुलिस पहुंचेगा. पुलिस पकड़ने के बाद क्या होगा? कोर्ट में जज जाएंगे. के सामने खड़ा किया केस जाएगा. जज अपना जजमेंट देगा और उस जजमेंट में तय होगा कि पनिशमेंट देना है कि नहीं देना है. करेक्ट एवरीवन? Yes, ma'am. आई विल बी. Yes, ma'am. अरेंज करेंगे आप इसको. लेट्स अरेंज करो. पहले आएगा क्राइम, फिर आएगा पुलिस, फिर पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, फिर जज के सामने खड़ा करेगा, फिर जज अपना जजमेंट देगा और फिर तय होगा कि मुझे पनिशमेंट होनी है. राइट Yes. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, D. check ऑप्शन नंबर D. ओके. Yes. Yes, ma'am. Yes, Let's ma'am. go ahead to the next question. Yes, family, community, member,
locality, sorry, country. Come on, come on. End point क्या होगा? Country. 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 अपना देश, country. Okay. Country किससे बनता है? Locality. Locality, पक्का? Think. Members. Members. No, members. Community. Community. छोटे छोटे पार्ट से आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले क्या आएगा बताओ? Member. फैमिली. ऐसे छोटे छोटे परिवारों को एक साथ करेंगे. अरिशा फैमिली. Member. नो No, ma'am. मैंने आपको बोला था हड़बड़ी में जवाब मत दो. स्कोप ऑफ मिस्टेक्स इज वेरी मच हायर. पहले ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स एक साथ आएंगे. इन इंडिविजुअल मेंबर्स का बनेगा फैमिली. फैमिली से क्या बनेगा? Community. कम्युनिटी. कम्युनिटी और लोकैलिटी में फर्क क्या है? बोलो बोलो. Community, one's family, and Community मैम locality. किसी एक रिलीजन से रिलेटेड होता है. Right. कम्युनिटी मींस व्हाट? किसी कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं. मतलब रिलीजन वाइज One family. अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक एरिया में रहते हैं तो उसे कहा जाता है लोकैलिटी. और ऐसे कई सैकड़ों लोकैलिटीज से बनता है पूरा अपना देश. Country. करेक्ट? राइट? Shall we Yes, arrange in particular order? Ma'am. Yes, Everyone. Okay. तो पहले आएगा मेंबर. ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स से बनेगी फैमिली. Family. परिवारों से बनेगा Community. Yes. अलग अलग कम्युनिटीज से बनेगा लोकैलिटी. Locality. लोकैलिटी से बनेगा अपना देश. Country. पूरा भारत महान. Okay. Come on, tell me. Option A. A. Option A. Option A. A is the correct. Okay. Everyone. Yes, ma'am. Okay. Shall we go ahead? Yes. Yes, ma'am. Poverty, population, death, unemployment, disease. चलो आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दो. Come on, fast. Come on. चलो बताओ मुझे सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा Population. हम लोगों ने बाकी के प्रॉब्लम्स में देखा है. हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे. एंड पॉइंट क्या है? Death. डेथ. मर गया, किस्सा खत्म, छूट गया. बराबर है ना? तो एंड पॉइंट Yes, इज sir. डेथ. यहाँ तक किसको कोई डाउट? अब No, हम ma'am. पॉइंट से डेथ तक पहुंचना है. चलो 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 चलो. डेथ क्यों होती है? Disease की वजह से. की वजह से. ओके. रिवर्स गियर में जाना है आप लोगों को. चलो ठीक है. रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हैं. ये डेथ. डेथ किसकी वजह से होती है? Disease की वजह से. डिसीज क्यों होती है? Poverty की वजह से. पॉवर्टी मतलब गरीबी. Hmm. पॉवर्टी क्यों होती है? Unemployment rate की वजह से. अनएम्प्लॉयमेंट. काम धंधा नहीं रहता तो पैसे कमाने का जरिया नहीं रहता. पॉवर्टी. ओके. और ये क्यों होता है? Population कहते हैं. Population की वजह से. बराबर है. जहाँ पे 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं वहाँ पे 100 लोग कैंडिडेट्स खड़े हैं तो बाकी के 90 लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड ही होंगे. अनएम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा? उनके पास कमाने के लिए पैसा नहीं होगा. कमाने के लिए पैसा नहीं है तो उनके पास क्या होगा? पॉवर्टी. राइट? फिर पॉवर्टी से क्या होगा? पॉवर्टी से Disease होंगे. डिसीज की वजह से डेथ होगी. Death. Okay, everyone. Alternative. C. Okay. Alternative C. Okay, so these were all the sample questions जो आपके बुक में दिए हैं. मैंने 2 questions extra में ऐड किए हैं. एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग नोटबुक्स में ये questions कॉपी कर ले ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आसानी रहेगी. Okay, let's go to the next question. Yes. चलो बोलो. Arrange the words in a meaningful sequence. Rajiv Gandhi, Narendra Modi, Lal Bahadur Shastri, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू. सबसे पहले तो मुझे बताओ ये लोग कौन हैं?
Prime Minister. Prime Ministers. प्राइम मिनिस्टर्स। हमको इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, मतलब क्या करना है, अरेंज करना है Arrange. ऑर्डर। तो बताओ सबसे पहले इन लोगों में से अपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, Jawaharlal Nehru. उनके बाद लाल Lal Bahadur Shastri. लाल बहादुर शास्त्री, कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, Lal Bahadur Shastri. श्योर, लॉक कर दिया जाए। Yes, ma'am. उनके बाद क्या कौन था? राजीव गांधी, Rajiv Gandhi. राजीव गांधी। उनके बाद Atal Bihari अटल Vajpayee. बिहारी बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी और Narendra Modi. नरेंद्र मोदी। The logical sequence is 5, 3, 1, 4. Alternative B. Bean. Okay, I'll give you a time of 2 seconds. Quickly take this down in your notebooks. Done? Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. Please take this down in your notebooks. I'm trusting you guys that you're going to follow all the instructions given in the class. yes ma'am. Last question for the day of the logical sequence. Chalo. Let's see who gives me the right answer. Class 2, 5 B. E option, ma'am. Sure? चलो बताओ हमें कहां तक पहुंचना है, एंड पॉइंट क्या है? Professional. Professional. इज माय एंड पॉइंट। ठीक है, चलो बताओ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? Class. Class. सबसे पहले मुझे क्लास करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? Class Class 10 and- से ले CSE. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? CSET. क्या करना पड़ेगा? CSET. ओके, फिर उसके बाद Executive. एग्जीक्यूटिव और उसके बाद आएगा प्रोफेशनल। Professional. करेक्ट। सो द अल्टरनेटिव इज B. Option B. अब समझ में आया लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट? Yes, ma'am. Yes, क्लियर ma'am. 100%? yes ma'am. अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया? yes ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? no Okay. So today I'll be beginning with a new chapter along with this. Though हम लोग finish नहीं कर पाएंगे पर मैं start करूंगी and then we'll continue it in the next chapter. Okay. Now the next chapter जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है logical cause and effect reasoning. क्या है? cause and Cause and effect. effect Cause reasoning. and effect reasoning. Now, what is meant by cause and effect reasoning? बताओ मुझे। Please mute yourself. Yes. Come on. Tell, cause and effect. कौन बताएगा? Prerna, please mute yourself. Come on. Chinmay says reasons and results. Very, very good. Reasons and results. Okay. Now, reason. Cause is reason. Always. And effect is result. Cause is always a reason. And effect is what? Result. Clear? Everyone? Cause Yes, and effect reasoning. जैसे for example, अगर मैं कहूँ आपको मैंने CSET पास करी, अब मैं एग्जीक्यूटिव में पढ़ती हूँ। I repeat, मैंने CSET पास करी, अब मैं एग्जीक्यूटिव में पढ़ती हूँ। तो बताओ यहाँ पे किसके वजह से मैं एग्जीक्यूटिव में हूँ? CSET. पास करी इसलिए मैं Executive. Understanding Yes, the ma'am. reason is CSET. CSET. The cause is passing of CSET.
and effect is what? That may execute. It is एग्जीक्यूटिव मैम. Okay? Clear? Okay? आगे और एक Yeah. एग्जाम्पल. बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल झड़ गए, अब मैं विग पहनती हूँ. चलो, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल झड़ गए, उनको म्यूट करो बोल के मेरे बाल झड़ गए, अब मैं विग पहनती हूँ. चलो, टेल मी. पढ़ाते पढ़ाते रीजन बाल झड़ना रिजल्ट. What is the reason and what is the cause? सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इफेक्ट क्या है. अब मैं विग पहनती हूँ, that is the effect, correct? Everyone? Yes ma'am. Yeah, ma'am. Yes ma'am. ऐसा क्यों हुआ? बच्चों को पढ़ाते 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 मेरे बाल झड़ गए. समझ में आया? Yes समझ में ma'am. आया? मतलब किसी भी चीज की वजह से कोई और चीज घटती है, जो घटती है That is child. और जिसके वजह से घटती है, that is Region couch. okay, fine, yes, shall we go ahead? Okay, let's go ahead further. Okay, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी. See the trick. Okay, आप लोगों को रेड कलर पसंद नहीं है ना? Yes. I will tell you how to distinguish between cause and effect. Easy sentences होते हैं तो हम कर पाते हैं, but ऐसे कई बार situations एग्जाम में questions आ सकते हैं जिनके लिए थोड़ा confusing हो जाए कि what is the cause and what is the effect. Okay, so let's find out. The trick is because. Okay, because is what? Conjunctive. Conjunctive मतलब क्या? Conjunctive मतलब क्या? बोलो. That join two sentences. दो sentences को join करने वाले शब्द को कहा जाता है conjunctive. Because क्या कहता है? दो sentences को join करता है. अब ये जो दो sentences है, इसमें से हमें find out करना है कि cause क्या है, reason क्या है और effect क्या है. अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे cause आएगा और कहाँ पे effect आएगा. Because के लेफ्ट साइड में ऑलवेज आएगा इफेक्ट और बिकॉज के राइट साइड में ऑलवेज आएगा कॉज. अब मैं मेरे एग्जांपल्स रिपीट करती हूँ. ओके, I cleared my CSEET exam. I am studying in executive. Come on. I am studying in executive because of I cleared CSEET. Understanding? Effect is I'm studying in executive. Correct? And what is the cause? What is the cause? I cleared CSET. Understanding? So come on, I want you to take this trick down in your notebooks. Trust me, it is going to be very, very, very helpful for you. Come on. Dash because dash. So left side में आएगा effect, right side में आएगा cause. Exam में आपको पूछा जाएगा which sentences is effect, which sentences cause. हम क्या करेंगे? Because use करके दोनों sentences को combine कर देंगे और फिर अपना आंसर find out करेंगे. Okay? Is it easy? Have you taken it down in your notebooks? Ma'am. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लॉजिकल रीजनिंग इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड वाया सैंपल क्वेश्चंस. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सैंपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डायरेक्टली. बहुत सारा थियरी है, प्रिंसिपल क्या है, क्लॉज क्या है. इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट कैसे फंक्शन करता है. Are you ready? Yes. Let's go to sample questions. Let's go to the sample questions, and sample questions start at page 181. Oh, wait. आप लोगों ने मुझे रोका नहीं. हम लोगों ने मैपिंग शीट में अभी तक लिखा ही नहीं है. चलो पहले अपने मैपिंग शीट में इंडेक्स में राइट डाउन cause and effect reasoning
page 177 of module. Come on. Cause and effect reasoning. Cause and effect reasoning. Write down page number of module 177 and page number of your notebooks. वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है. Provided आप लोग notebooks में लिखते हो, provided आप लोग instructions follow करते हो. Done? Okay. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Sample questions. Let's start. Question number 1, page 181. Statements. दो statements हमें दिए गए हैं. क्या है वो? The prices of vegetables have been increased considerably during summer. There is tremendous increase in the temperature during this summer, thereby damaging crops greatly. Okay? मतलब क्या हुआ है पता? ये लोग बोल रहे हैं पहले सेंटेंसेस में कि अभी जो वेजिटेबल्स है उनका दाम बढ़ गया है. Prices have grown, risen. Okay? सेकेंड सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं वो लोग? टेम्परेचर में इतना बदलाव आया है उसकी वजह से बहुत सारी क्या हुआ है, क्रॉप्स नुकसान में है, बहुत सारे वेजिटेबल्स खराब हो गए हैं. करेक्ट? अगर हम लोग देखें तो क्या दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई कनेक्शन है? Summer season. कनेक्शन? यस. टेम्परेचर. क्या कनेक्शन हो सकता है? Summer season. Summer समर season. सीजन की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो गए. डैमेज हुआ इसलिए उनका सप्लाई कम हो गया. सप्लाई कम हो गया इसलिए उनके प्राइसेस क्या हुए? बढ़ गए. राइट? राइट? तो चलो. Yes, ma'am. Because, हम लोग सबसे पहले तो बिकॉज लिख लेते हैं. चलो बताओ. कम ऑन. Which is the कहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा? लेफ्ट पे कौन सा सेंटेंस आएगा? First sentence first एंड राइट पे कौन सा सेंटेंस आएगा? Second. and the second one. तो चलो आप मुझे बताओ. Come on my dear students, tell me. लेफ्ट साइड में आता है वो कॉज है कि इफेक्ट है? Effect. This is Effect. और राइट साइड में आता है दिस इज Cause. Cause. बराबर है. मतलब अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज सेंटेंस 1 इज इफेक्ट एंड सेंटेंस 2 इज Cause. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? No, ma'am. नो. अब ऑप्शंस क्या क्या है? मुझे स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी. ऑप्शंस क्या क्या है? हमने पहले क्या फाइंड आउट किया वो लिख देती हूँ. ये इफेक्ट है, हमने ये फाइंड आउट किया है और ये कॉज है. करेक्ट? अब ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं. स्टेटमेंट 1 इज कॉज, 2 इज इफेक्ट. क्या ये सही है? No, ma'am. सेकंड 2 इज कॉज, 1 इज इफेक्ट. क्या ये सही है? Yes, ma'am. ओके, इसको कंसीडर कर सकते हैं बट आगे के सेंटेंसेस में ऑप्शन भी पढ़ने पड़ते हैं. करेक्ट? एमसीक्यूज में ऐसे ही हम लोग तुक्काबाजी नहीं कर सकते. चलो आगे. बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है कि एक दूसरे से रिलेटेड है? एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ये चलो ये तो स्क्रैप हो गया. एट द लास्ट बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. किसी एक घटना के दोनों भी संभावनाएं हैं. ऐसा है क्या? नहीं. No, ma'am. एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इसको तो स्क्रैप. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Second. Alternative second. अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. चले आगे. Yes, ma'am. Okay, example 2. Okay, there's one more. Sorry. There's alternative 5 also. Both statements 1 and 2 are effects of some common cause. ऐसा भी कुछ नहीं है. Correct? Yes. Let's go to the next question. ऑप्शन थर्ड भी तो बताइए. Sorry. ऑप्शन थर्ड भी तो रिलेटेड था ना. Independent तो वो है ही नहीं, एक दूसरे से related है. इसलिए ऑप्शन 2 का भी ऑप्शन 3 का ओह भी. सॉरी, इंडिपेंडेंस है रिलेटेड. Let's go ahead. Police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of large number of people. The citizens forum called a general strike in protest against the police atrocities. अब इसके पहले अर्थ समझ लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि पुलिस रिसॉर्टेड टू लाठी. मतलब क्या किया? पुलिस ने लाठी चार्ज किया. क्यों?
लोग इकट्ठा हो गए, जैसे आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस लिया होगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन, करेक्ट करेक्ट, जब Yes, कर्फ्यू ma'am. अनाउंस किया था अपने डियर प्राइम मिनिस्टर जी ने, राइट? ओके, यस। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये सेंटेंस नंबर 1 का मतलब है। सेंटेंस नंबर 2 का मतलब क्या है? Citizen strike. General strike. जनरल स्ट्राइक किया। ओके, तो अभी हमें कॉज और इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Because. Because चलो बताओ। first one cause, And second one effect. बराबर है ना? Yes, ma'am. yes ma'am, फोरम कॉल्ड द जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब उन्होंने उन्हें एग्रेसिव एक्शन लिया। पुलिस ने क्या किया? लोग इकट्ठा हुए, लोगों पे लाठीचार्ज किया। इसलिए सिटीजंस फोरम क्या बोल रहा है? पुलिस को ये हक किसने दिया? सही है, बराबर है। सो पुलिस Yes, sir. अथॉरिटीज के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया, सो दैट इज इफेक्ट, effect. right? And first is cause. Correct? Everyone agreeing to it? Yes. Yes ma'am. Okay, so second is effect, first is cause. Okay? Yes, चलो हम लोग समझ लेते हैं। Yes, second is what? Effect. Effect. And first is? Cause. चलो options. Statement 1 is cause, 2 is effect. कुछ हद तक सही है। ओके, बाकी के ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। 2 cause, 1 effect, सही है क्या? No ma'am. No, ma'am. Third, 1 and 2 are independent. No, they are related. एक दूसरे से related है। एक अच्छा तू का नाम जी। हाँ अच्छा। Gopal, this is a last warning to you in all the sessions further. Okay, else I shall not be allowing you to attend the lectures. Please maintain your decorum in the class. Further, option 4, 1 and 2 are effects of independent causes. क्या ये independent है? No, ma'am. No, they are related. तो चलो fourth भी गया। Fifth, some common cause के effects है. Is it? No. No ma'am. Correct answer is 1. One. Anyone having any doubts? No, ma'am. No ma'am. अपने नोटबुक में मेंशन करो जो मैं लिख रही हूँ, डैश बिकॉज डैश, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, समझ में आ रहा है? उसके बाद अपने नोटबुक में लिखो स्टेटमेंट नंबर 1 कॉज है या इफेक्ट है, जो भी है। स्टेटमेंट नंबर 2 कॉज है कि इफेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम के वक्त अपना नोट्स शुड बी आर एवरीथिंग, द मेन पॉइंट, एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है आपके नोट्स पे। यस, लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। It is the aim of civic authority, okay? It is the aim of cities' civic authority to get air pollution reduced by 20% in the next 2 months. The number of asthma cases in the city is constantly increasing. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सिटी की सिविक अथॉरिटीज क्या ट्राई कर रही है कि Air pollution reduced. एयर पोल्यूशन कम हो जाए। और सेकंड स्टेटमेंट अपने को क्या बोल रहा है? Air flows. बढ़ रहे हैं। करेक्ट है, Yes ma'am. बराबर है। अस्थमा के केसेस क्यों होते हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, हाँ या ना? Yes ma'am. ओके, बराबर है ना? ओके, सो बिकॉज, बताओ बताओ लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 या 2? 2. 2 ma'am. Second. 1 आएगा। 1 because 2. 1 becomes what? 1 becomes effect and 2 becomes cause. Yes or no? Yes, ma'am. Effect, Yes ma'am. Yes ma'am. cause. बराबर है ना? See, Yes sir. अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए सिटी के सिविक अथॉरिटीज ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है। समझ में आ रहा है? एयर पोल्यूशन तो है ही, एयर पोल्यूशन से सी दिल्ली में हमेशा से एयर पोल्यूशन था ही,
बट दिल्ली के एयर पोल्यूशन से इतने सारे हेल्थ इश्यूज राइज हुए, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑड इवन डेज, पता है ना ऑड इवन डेज क्या कैसे किया था दिल्ली में, Yes, ma'am. पता है ना क्यों किया था, क्योंकि लोगों को एयर पोल्यूशन की तकलीफ होने लग गई थी। हमारे इंडिया में जब तक कुछ घटता नहीं, होता नहीं, तब तक हम कुछ करते नहीं, सही है ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो था ही। जब सब लोगों को फिजिकली उनके फिजिकल हेल्थ पे उसका असर होने लगा, तब एक्शन ली गई। इन द सेम वे हियर आल्सो एस्थमा के केसेस बढ़ गए, इसलिए हमने क्या किया, सिविक अथॉरिटीज ने एक्शन लेने का निर्णय लिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. sentence number 1 is effect and sentence number 2 is cause. Clear? Sentence number 1 is effect. Sentence number 2 is Cause. okay. Chalo, sentence 1 cause, 2 effect. Is it correct? No, ma'am. Second, 2 cause, 1 effect. Is it correct? कुछ हद तक. Then option 3, 1 and 2 are independent. No, not independent. They are related to each other. Then 1 and 2 are effects of independent causes. No. Ma'am. Then option 5, common cause. No. So alternative 2 is the correct answer. Is it interesting? Yes. Yes, ma'am. Is it easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we shall continue further in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. And I hope you all are revising. जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए, मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि आप अपना एम है 25 और 25. थैंक यू एंड बाय बाय.